Okay, hope my screen is visible. Screen दिख रहा है, right? Hmm? Okay, Yes, sir. good. So what we can do here is let's just revise. We are learning data frame. Data frame is nothing but a data type in pandas library. एक library है called pandas जो हम data analysis के लिए use करते हैं. So in that library there are data types. Series is one of a data frame एक है, right? Panel वगैरह है. So we learned about series. Series is a one dimensional data type, and currently we are learning about pandas. Sorry, data frame. Data frame is a two dimensional data structure or data type आप बोल सकते हो, right? In this we started with how to create, कैसे आप create कर सकते हो, फिर उसके बाद how you can access, how you can index, how you can slice, mathematical operations कैसे काम करते हैं, all those things we learned, right? Logical, mathematical, सारे अलग अलग operations, and then we started with methods, and in the methods हमने data exploration such as data understanding, formatting के लिए जो जो methods है, for example info है, describe, head, tail, right? And uh, describe में जो अलग अलग options आते हैं such as count, mean, uh, median, max, then standard deviation. So all these options you can use it as a formula, as a function as well, right? Apart from this, we studied a lot about how you can use functions such as drop के बारे में भी एक पढ़ा था. So drop मतलब delete करना. We'll again cover in detail, but you should know how you can do it. Then indexation, sorry, slicing use करके we distributed the data. मतलब आपने लॉजिकल फार्मूला लगाया था एंड देन उससे आपको बाइनरीज में आंसर मिले थे. is na, is na dot sum, is na dot sum dot sum, right? All those things. So hope you are able to do it on your own data set. जो आपका डेटा सेट है उसके ऊपर भी आप ये सारे फंक्शंस और ये सारे मेथड्स आप यूज कर रहे हो. ओके, that would be better, I would say. Okay, let's see. So today we are going one more detailed, एक dates करके data type है, right? Generally Excel में data type होता है date करके, तो similar data type is available in Python as well. Okay, तो वो data type use करके how we can reduce our work or how we can utilize अवेलेबल फंक्शंस जो pandas हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो एडिशनल फंक्शंस हम कैसे यूज कर सकते हैं. So as usual I need to start with import, right? Import pandas as pd, then you covid df आप क्या करते हो, covid फाइल रीड करते हो, right? So what is a function, anyone knows कि कैसे रीड करना है? How to create a data frame? Suppose ये covid df मुझे रीड करना है, so how should I do it? Yes. hmm? Not clipboard, read csv, right? And then search covid को, हाँ ये this is the file and execute. Read हो गया. If you want to check whether it is available or not, covid df print करके देखिए. So this is a date, new cases, new death and new test. So this information is already available. मतलब इतना information available है आपके पास. Okay, understood? नेक्स्ट वन इज, सपोज जो आप यहाँ पे डेट नाम का कॉलम है इसे फॉर्मेट करना है एंड इसमें से अलग अलग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो दैट इज पॉसिबल. पहले तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कीजिए. देर इज हाउ यू कैन डू, इधर यू कैन यूज df डॉट डेट और आप स्क्वायर ब्रैकेट ये, राइट? दिस इज व्हाट वी कैन गेट इट.
नाउ सपोज यू वांट टू यूज दिस डेट फॉर्मेट यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड टू डेट टाइम इंडेक्स। एक फंक्शन है जो डेट टाइम इंडेक्स कन्वर्ट करता है। लेट्स सी हाउ इट डज। ये देखिए, covid.df टू डेट टाइम, ये डेट टाइम क्रिएट करता है। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा टाइप चेंज होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सीन, इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो ये जनरली टेक्स्ट है और ऑब्जेक्ट है। इसको हमें डेट में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज टू डेट टाइम, pd डॉट टू डेट टाइम, और एक्चुअल जो डेटा है वो पास करो एंड सेव इन द सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल में आप पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस यू कैन पास इट इनटू टू डेट टाइम, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट। देखिए नाउ इट इज अ डेट टाइम 64। तो ये अभी इसका डेटा टाइप हो गया डेट एंड टाइम। डेट टाइम ये डेटा टाइप है। जैसे एक्सेल हैज अलग अलग टाइम, अलग है, डेट अलग है, बट पाइथन हैज डेट टाइम लाइक दिस। ओके, then there is one more option called pd dot date time index। तो ये डेट टाइम इंडेक्स क्या करता है, इट फाइंड्स मोर ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इस पूरे डेट में से हमें सिर्फ ईयर चाहिए, राइट, मतलब ये 2 19 20 इतना ही चाहिए। और पूरे डेट में से सिर्फ मंथ चाहिए, ये देखिए मंथ इज 12 1 1 1, ये सारे। और डेट चाहिए, एग्जैक्ट डेट, राइट। तो ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड डेट टाइम इंडेक्स। देखिए, एक नया कोविड डीएफ ईयर क्रिएट कर सकते हैं, पीडी डॉट डेट टाइम इंडेक्स कोविड डीएफ। ये जो डेटा फ्रेम है इसे एज ए इंडेक्स ट्रीट कीजिए एंड देन यू पुट अ डॉट ईयर। ओके, और ओके, ये एक ऑप्शन है डेट टाइम इंडेक्स का। नहीं तो एग्जैक्ट ये जो डेट एंड टाइम है इसे भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, डेट टाइम में वंस यू कन्वर्टेड इट इन डेट एंड टाइम, फिर आप डेट टाइम इंडेक्स एंड डॉट ईयर लिखोगे तो आपको सारे ईयर का इंफॉर्मेशन आएगा। डॉट मंथ लिखोगे, सारे मंथ का इंफॉर्मेशन इस मंथ में से होगा। डे लिखोगे तो डे का इंफॉर्मेशन से होगा। वीक डे लिखोगे तो एग्जैक्टली उस दिन, वीक डे मतलब मंडे टू फ्राइडे है कि नहीं है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स पता चलेगा। मतलब संडे इज गिवन एज 0, मंडे को 1 बोला जाता है, ट्यूसडे को 2 बोला जाता है, ऐसे। तो उस दिन ट्यूसडे है तो आपको उस कॉलम में क्या आएगा, 2 आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये देखिए, इफ आई प्रिंट दिस एंड इसका आप डेटा फ्रेम चेक करोगे, लेट मी रन द डेटा फ्रेम अगेन हियर। ये देखिए, सो ये 4 नए कॉलम क्रिएट हुए और इसके अंदर ईयर में 2019, बिकॉज ये पूरे डेट का आपने ईयर निकाला है इधर, ऐसे। ओके, देन पूरे डेट का मंथ आपने यहाँ पे निकाला है, दिस इज द मंथ। पूरे डेट का ईयर, और सॉरी डे चाहिए तो ये है। एंड इज इट अ वीक डे, वीक डे चाहिए तो ये 1 इज जनरली कंसिडर्ड एज मंडे, तो इस दिन मंडे था, ऐसे। 2 इज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो सपोज आपको फिल्टर आउट करना है, मुझे सारे ऐसे डे चाहिए जहाँ पे सैटरडे हो और संडे हो, तो इट इज जनरली 6 इज सैटरडे, 0 इज अ संडे। ये देखिए, राइट। तो आप सिर्फ इक्वल टू 6 कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पूरे डेटा फ्रेम में वीक डे कॉपी, इफ आई गिव डेटा फ्रेम वीक डे इज इक्वल टू 0, तो सारे क्या आएंगे, मुझे सिर्फ संडे वाले रिकॉर्ड्स आएंगे। ये देखिए, सारे संडे वाले रिकॉर्ड्स आएंगे। जहां जहां पे संडे होगा ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। बट आई वांट एक्चुअल डेटा, ये बुलियन मास्किंग हो है, एक्चुअल डेटा चाहिए, तो we pass this information into same data frame which is covid df में आप पास कर दो ये इंफॉर्मेशन। तो ये सारे रिकॉर्ड्स है जहाँ पे ये संडे था, डे वाज अ संडे, लाइक दिस। ओके, ये देखिए इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं लाइक दिस। क्लियर? ओके,
आप चेक भी कर सकते हो, एक महीने में 4 संडे 5 है इस महीने में, बाकी महीने में 4 4 4 रहेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ एग्जैक्ट डे वाइज इम्प्लीमेंटेशन, मतलब पूरे डे को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो यू कैन रेफर द डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे क्लिक करके डेट टाइम इंडेक्स के बारे में आप देख सकते हो। इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ, मतलब अलग अलग क्या क्या आप यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, डॉट ईयर लिखोगे तो ये क्या दे करेगा, ईयर। डॉट मंथ लिखोगे तो ये क्या करेगा, मंथ देगा बट इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जनवरी को 1, दिसंबर को 12। डे लिखोगे तो डे लिखेगा, डेज। आर, टाइम देगा, मतलब आपके डेटा फ्रेम में टाइम वगैरह है तो आपको आवर आर का टाइम देगा। फिर मिनट, सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स। डेट देगा तो रिटर्न्स द numpy array of python date time object। डेट टाइम ऑब्जेक्ट का डेट के फॉर्म में दिखा, ये एग्जैक्टली डे देगा, दिस इज अ डेट। एंड टाइम, रिटर्न द टाइम, डे ऑफ ए ईयर, कौन सा दिन था उस पूरे ईयर का। ऐसे बहुत सारे अलग अलग, ये देखिए व्हाट यू कैन से पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल है। वीक डे हम यूज कर रहे थे, कौन से क्वार्टर में है, वेदर इट इज Q1 Q2 Q3 Q4, ये देगा, राइट। ये मंथ स्टार्ट है क्या, ये मंथ एंड है क्या, ये अभी आप लॉजिकली चेक कर सकते हो। इज स्टार्ट, इज क्वार्टर स्टार्ट और एंड, इज ईयर स्टार्ट और एंड, लीप ईयर है कि नहीं ये चेक कर सकते हो। देखिए, सो ऐसे अलग अलग फंक्शंस आप यूज कर सकते हो विच यू कैन गेट इट। ओके, उससे रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स भी है यहाँ पे। ओके, बहुत एडवांस में ये आप यूज कर सकते हो। ओके, डेट एंड टाइम है, सीरीज है, टू फ्रेम, मंथ, कन्वर्ट इंडेक्स यूजिंग स्पेसिफाइड, आपका डेट एंड टाइम का फॉर्मेट अलग है। फॉर एग्जांपल इंडिया में वी राइट DD MM YY, राइट, बट इन यूएस उधर MM DD एंड YYY वगैरह रहता है। तो आप उस केस में यहाँ पे डेट एंड टाइम भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू यूज दिस मेथड, राइट, ये मेथड है STRF, मतलब STRF टाइम, कन्वर्ट इंडेक्स यूजिंग स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम में ये कन्वर्ट करता है, ये ऐसे आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो स्टार्ट ईयर, मंथ एंड डे, आपका कुछ इंडिया में ऐसा रहता है जनरली, %D, %M एंड %Y, राइट, सॉरी Y कैपिटल, डेट, मंथ एंड वाई, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इफ यू आर हैंडलिंग सम अदर डेटा तो ये आप फॉर्मूला, ये देखिए ऐसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, मान लो ये आपने, आपका ये DF ऑफ टाइम है, जो हमारे केस में था कोविड DF, राइट। सो कोविड अंडरस्कोर DF और अंदर डेट, देन आई कैन पास दिस मेथड STRF टाइम, एंड इसके अंदर मैं फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकता हूँ कैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए D डैश, ओके, देन सॉरी, डेट, मंथ एंड परसेंटेज ऑफ ईयर। तो हमारा डेट टाइम ईयर के बेसिस पे चेंज होगा ऐसे। दिस इज ऑल्सो, ऑप्शंस आर अवेलेबल, और ये अलग अलग सिनारियो में आप यूज कर सकते हो, बट मोस्टली whenever you format, आप जब भी डेट एंड टाइम कन्वर्ट करते हो तो इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि आपको जो फॉर्मेट है वो मैच करता है, नहीं है आपको कुछ फोर्सफुली करना है तो जनरली वी यूज such functions। ओके, बट बाय डिफॉल्ट इट आइडेंटिफाइज। ओके, मतलब ऑटोमेटिकली, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट हैज आइडेंटिफाइड इज मंथ, सॉरी, ईयर, मंथ एंड डेट ऐसे। ओके, इससे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, दैट्स व्हाई पीपल यूज पांडास, क्योंकि पांडास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको कि कैसे डेटा मैनिपुलेशन करना है, चेंज करना है, कैसे ये आप किसी
दूसरे कंट्री के साथ काम कर रहे हो तो उसे कैसे एडजस्ट करना है डेटा अकॉर्डिंगली. यस, नो. हम्म. Online, anyone? Okay. So for us most important is data type conversion, convert करना है and उसमें से year, month वगैरह find out करना है. Okay. And logically आपको कुछ changes वगैरह करना है तो you can definitely change. For example आपको Sundays वगैरह find out करना है, Saturday वगैरह find out करना है तो you can use something like this. ये logic use कर सकते हो. Okay. Clear? Date and time. Date and time related options है ये. Okay. फॉर एग्जाम्पल मंथ, मान लीजिए आपको जैन का डेटा के जनवरी में जितना भी डेटा था वो डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और उस पर सिर्फ एनालिसिस करना है. तो व्हाट यू कैन डू इज, सपोज यहाँ पे आप जैन df, ओके, जैन अंडरस्कोर df इज इक्वल टू कोविड data frame, and I know I have already created a column called month, so I can use that to write a logic. For example, month इज इक्वल टू क्या होगा, 1. ऐसे डेटा में जहाँ पे मंथ 1 होगा दैट इज अ जैन, और वो पूरा डेटा मुझे चाहिए जैन के डेटा फ्रेम में. सो कॉपी, आई शुड सिर्फ इतना ही लिखूंगा तो ये ट्रू एंड फॉल्स देगा, राइट. कंपैरिजन ऑपरेटर, होप यू नो. सो नाउ इफ यू प्रिंट जैन df, सो जैन का पूरा डेटा आपको यहाँ पे आया, ये सारे जैन का डेटा है. ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट द डेटा. मतलब पूरा अलग अलग डेटा आपको कट करना है, ब्रेक करके देना है किसी को. यू कैन यूज सच ऑप्शंस. क्लियर, समझ में आ रहा है हाउ यू कैन यूज. कल हमने अंडरस्टैंड किया था, नाउ वी आर इन अ स्टेप टुवर्ड्स अ मॉडिफिकेशन. सपोज आपको कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ कट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं डेटा में, कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो हम अभी देख रहे हैं. एंड उसमें से फर्स्ट ऑप्शन इज हाउ यू कैन यूज अ डेट कॉलम. जो डेट कॉलम है वो कैसे आप यूज कर सकते हैं. ओके, बाय द वे ये सेम चीज एक्सेल में करना है तो हाउ आई कैन डू इट, कैन एनीवन टेल मी. यस, एक्सेल में डेटा है तो कैसे करते हैं. जैन का डेटा मुझे फिल्टर करना है. नो वन. कॉलम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, डेट, राइट. द मोमेंट यू फिल्टर ऑन द डेट, आप जैसे डेटा टाइप कन्वर्ट करोगे, देन यू अप्लाई फिल्टर, आपको डायरेक्टली वहां पे मंथ दिखाई देता है, जैन, फेब, मार्च, राइट. एंड देन यू कैन यूज दैट एज द ऑप्शन. ओके, सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन. ओके, क्लियर how you can filter the data based on this. Some few more example नीचे और वीक एग्जांपल्स रहेंगे, वो देख चेक करते हैं. सो मंथ ऑफ मे के लिए है यहाँ पे. ओके, एक बार मे का डेटा बन गया तो उसके ऊपर आप सारे, आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ एडिशन लेना है. देखिए डॉट सम लगाया है तो ये क्या आएगा, पूरे मे के महीने के ऊपर डॉट सम लगेगा, राइट. So this is how you can use, or this is how you can cut
पूरे डेटा में से एक छोटा पार्ट निकाल सकते हो, उस पे सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्फो, डिस्क्राइब, काउंट, मीन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन मंथ लेवल पे होगा। अंडरस्टूड? पता चला कि कैसे आप मंथली डेटा निकाल के मंथ लेवल पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बाय द वे ये सारे कैलकुलेशन डॉट सम वगैरह जो कल हमने देखा है, सम, काउंट, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड, एसटीडी, ऐसे ही वर्क होगा, बट दैट द डेटा विल बी ऑन मंथ बेसिस। ओके, कैन एनीवन ट्राई? किसी को ट्राई करना है? कैन एनीवन कंफर्म वेदर इट इज वर्किंग, नॉट वर्किंग? सो आपको डेट टाइम कन्वर्ट करना है, टू डेट टाइम इंडेक्स यूज करना है। टू डेट टाइम इंडेक्स इज अ फंक्शन जो आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है, डेट के ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए आपको ऑप्शंस देता है। ओके, यस, नो, ओके, दिस इज अ मंथ ऑफ मे के इस पे डेटा है। बाय द वे यहाँ पे डॉट ई से एन ए भी कर सकते हो, कल जो देखा था इज एन ए डॉट सम, दोज थिंग्स वर्क हियर एज वेल। ये देखिए, सिर्फ मई के महीने में नल कितने हैं और उसका समेशन लाइक दिस। तो ये सारा डेटा आएगा फॉर अ मंथ ऑफ मे, राइट? फॉर मंथ ऑफ जून देखना है तो मेक इट 6 एंड ऑल द डिटेल्स आर मंथ ऑफ जून। इसी डेटा फ्रेम को कट करना है, किसी को ब्रेक करना है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है आपको ये, यू डोंट हैव टू स्टोर वेरिएबल एंड सिर्फ यही 3 कॉलम चाहिए। फॉर एग्जांपल ईयर मंथ चाहिए तो व्हाट यू कैन डू, डायरेक्टली इंडेक्सिंग कर सकते हो आप, राइट? ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, और जो भी चाहिए इंडेक्सिंग डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट एडिंग एनी वेरिएबल। कुछ वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये किसी वेरिएबल में स्टोर किया कॉल df, फिर उसके ऊपर इंडेक्सिंग किया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। इसके आगे जाके आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यस, ईयर एंड मंथ ऐसे, लाइक दिस। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग डायरेक्टली ऑन द डेटा फ्रेम। ये जो डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है इसका, इसी के ऊपर आपने इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लगाया है। ओके, अगेन सेम एग्जांपल है, मैथमेटिक्स डॉट सम वगैरह करना है तो यू कैन यूज द सम। एवरेज निकालना है, मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एसटीडी, राइट? तो हर एक कॉलम का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। मिनिमम चाहिए तो हर एक कॉलम का मिनिमम निकलेगा। जनरली पीपल क्रिएट अ डिफरेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्रिएट करने से थोड़ा सिंपल प्रोग्राम बनेगा, बट विदाउट वेरिएबल आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक डेटा फ्रेम है, उसके ऊपर आपने फिल्टर लगाया है फॉर मंथ ऑफ मे, फिर उस डेटा फ्रेम में से 3 कॉलम आपने सिर्फ चूज किया है, उस 3 कॉलम में आपने मिनिमम फाइंड आउट किया है, राइट? लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में हमने सीखा था। दिस इज नथिंग बट अ लॉजिकल ऑपरेशन, जहाँ पे बुलियन मास्किंग को एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट किया था। एंड दिस इज अ मेथड, ये मेथड लिस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, इसी का एक सिंपलेस्ट वर्जन भी है जहाँ पे आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हो, डेटा फ्रेम डॉट न्यू केसेस। नहीं तो ये ऐसे भी यू डिसाइड कि आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ा है अभी तक। ये डेटा फ्रेम लो, उसमें से एक कॉलम बाहर निकालो और उस पे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको लगाना है वो लगा सकते हो, और डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। ओके, नॉट एन इशू। ओनली थिंग इज डॉट ऑपरेटर का एक इशू है, ब्लैंक मतलब स्पेस रहेगा बीच में तो ये वर्क नहीं होता, राइट? बट डॉट ऑपरेटर से भी ये काम चलता है, डॉट कॉलम का नाम। ओके, लाइक
एक सिंपल एग्जांपल, संडेज के दिन कितने टेस्ट हुए हैं, न्यू केस कितने हैं और उसका एवरेज क्या है। तो पूरे डेटा में से संडेज को फिल्टर लगाओ, उसमें से न्यू केसेस सिलेक्ट करो एंड एवरेज फंक्शन यूज करो। ओके, लाइक दिस यू कैन सॉल्व और यू कैन गिव आंसर पूरे डेटा में से। फॉर एग्जांपल सपोज आपको पूरे इन मंथ ऑफ जैन, ओके, जैन में संडे के दिन न्यू केस कितने आए हैं उनका सम चाहिए ऐसे। तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग द कोविड डीएफ, जो भी कोविड डीएफ है उस पे जैन एंड संडे ऐसे फिल्टर लगाना पड़ेगा मल्टीपल और करके, एंड देन सॉरी एंड आएगा, लेट मी शो यू, कोविड डीएफ डॉट मंथ, राइट, सॉरी मंथ, क्या आना चाहिए, मंथ इज इक्वल टू 1 एंड कोविड डीएफ डॉट न्यू, सॉरी वीक डे, राइट, वीक डे कितना होना चाहिए, 0 संडे के लिए। ओके, देन न्यू केस ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, कॉलम न्यू केसेस, न्यू अंडरस्कोर केसेस डॉट सम। The truth value of series is ambiguous dot all. Wait, okay, step by step जाते हैं, let's address this first and then check. Okay, and let me address this here अलग से, month of Sunday, month की जगह क्या था, weekday and it's Sunday. Okay, so it is showing a 0, warning दे रहा है boolean, okay, nothing but you can get the answer like this directly, and मतलब multiple operations हो नहीं रहे, but individual filtering आप लगा सकते हो on data frame. Okay, and then you can extract, or else simple ये सारा एक वेरिएबल में कॉपी करो, एक वेरिएबल बनाओ called jan underscore sunday underscore data frame, and on that data frame you can use some different option. For example, jan df, राइट, इसका एक लॉजिक आएगा, फिर jan sunday underscore df, ये एक बनेगा, एंड देन jan sunday df new cases, new cases इसका एक वेरिएबल, एंड देन यू कैन यूज दिस डॉट सम, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये भी अप्रोच बराबर है, बोथ विल वर्क, दिस इज क्या बोलते हैं शॉर्टकट है, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू कॉपी हियर, ये यहाँ पे आएगा, फिर आगे वाला ये लॉजिक यहाँ पे आएगा, राइट, बट कॉपी डेटा फ्रेम इज दिस, एंड ये डेटा फ्रेम के ऊपर ना जनवरी में से संडे निकाल रहे हो आप, ये संडे, जैन संडे में से न्यू केसेस निकाल रहे हो, तो न्यू केसेस को इंडेक्स करो यहाँ पे, दिस न्यू केसेस इंडेक्स, एंड देन इस डेटा फ्रेम में आप समेशन करो। लाइक दिस यू कैन राइट स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, एक ही साथ लिखना है तो भी ऐसे चेन बना सकते हो आप। ओके, ओके, सो कैन एनीवन कंफर्म कुछ आप वर्क हो रहा है, एज इन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड
कि what we are doing is like month कैसे select हो रहा है, day कैसे select हो रहा है, as in month नाम का जो column है उसमें से y1 y0. yes. Okay. yes. no. date column पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस है जो यू कैन प्रेफर, बट ओनली थिंग इज फिल्टरिंग आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे फिल्टर करना है. ईयर निकाला है तो डॉट ईयर करके आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, उसके ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हो. ओके, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इज डेटा क्लीनिंग. डेटा क्लीनिंग क्यों करते हैं? जहाँ पे ब्लैंक वगैरह है, जो हमने नल वैल्यूज फाइंड आउट किया था, राइट, डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट किया था, तो वो आपको डिलीट भी करना होगा. सपोज देयर इज अ डुप्लीकेट वैल्यू, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो आपको डिलीट भी करना होगा ना दोज रिकॉर्ड्स. और नल वैल्यूज है उसे फिल करना होगा, नहीं तो डिलीट करना होगा. सो यू नीड टू डू समथिंग, यू कैनॉट यूज एज इट इज. तो उससे ही रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज अ मिसिंग वैल्यूज. सपोज जो NA है, नल वैल्यूज है, दोज आर नथिंग बट मिसिंग. वहां पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, इसलिए आपको नल आ रहा है वहां पे. तो उसे कैसे हैंडल करना है, तो उसके बारे में 3-4 स्ट्रैटेजीज है. फर्स्ट एंड वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी इज डिलीट. ओके, आप एक चेक कर सकते हो कितने परसेंटेज ऑफ वैल्यूज डिलीट है. डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो नल वैल्यूज, बट प्रोवाइडेड परसेंटेज उनका कम होना चाहिए, लेस देन 5% ऑलमोस्ट. ओके, 5 से ही कम. और परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है वी ऑलरेडी सीन. ओके, फॉर एग्जांपल एक कोई भी डेटा फ्रेम है, राइट, ये डेटा फ्रेम है कोई DF, सॉरी यहाँ पे, तो इसमें से नल वैल्यूज का परसेंटेज फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करना है, कैन एनीबॉडी टेल मी? राइट, this will give you a percentage. Okay, so based on this answer, इसके आंसर के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो whether you want to delete or not. Okay, if it has to be less than 5%, currently it is showing 45 into 100 कीजिए, 45% values null है उसमें से, so definitely you should not choose to delete. but 5% से कम है, for example cars, I guess इस data frame में there is a less than 5%. check df dot is na dot sum length of, ये देखें 7%, 7% है, तो स्टिल मैनेजेबल. सो यू कैन गो बैक, मतलब 5% से भी कम हो तो मोस्टली करते हैं, 7% इज ओके. तो आपको डिलीट करना है इस केस में ये सारे वैल्यूज, तो क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली देयर इज फंक्शन कॉल्ड df डॉट ड्रॉप na. df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप क्या करना है na, df डॉट ड्रॉप na. ये फंक्शन क्या करता है, इसमें से सारे नल वैल्यूज हटाता है आपके पूरे फंक्शन में से. जहां जहां पे भी नल दिखेगा वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट करता है. फॉर एग्जांपल let me open the file car sales, this one. देखिए, सो यहाँ पे नल दिख रहा है, तो ड्रॉप na क्या करेगा, पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा. ऐसे ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा ड्रॉप na की वजह से. लेट मी शो यू कि कैसे करते हैं एंड हाउ यू कैन अवॉइड. मतलब आपको स्पेसिफिक डिलीट करना है, क्या करना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो. आई गेस नीचे एग्जांपल्स रहेंगे उसके, इट वुड बी बेटर, आपको इन फ्लो में मिल जाएगा रादर देन जो मुझे पता है वो फंक्शंस आपको बताऊं. df info है,
So you can see these are the numbers. Describe से describe आता है. Info is na का आप चेक कर सकते हो. Sample. हाँ, ये देखिए 7%, राइट. आपको इंडिविजुअल रिकॉर्ड देखना है तो आई लॉक वगैरह कर सकते हो. ओके. नल वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है. इज एन ए और इज नल क्या देता है. इज एन ए इज नल आपको बुलियन देता है, उसको अनमास्क करना है तो यू पास ऑन द डीएफ. सो दीज आर द नल वैल्यूज. सारे नल वैल्यूज आपको दिख रहे हैं. एक्चुअली उनके इंडेक्सेस दिख रहे हैं. देखिए ऐसे सारे 0 1 2 3 4 सब जहाँ जहाँ पे भी इंडेक्सेस मतलब नल वैल्यूज है वो हाईलाइट किया है एन नॉट अ नंबर के साथ. डॉट सम करोगे तो एक्चुअल वैल्यूज मिलेंगे. यहाँ पे ड्रॉप न किया है कि नहीं यार यहाँ पे. ठीक है, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट किया है. परसेंटेज, ओके, परसेंटेज कन्वर्ट किया है यहाँ पे. मिसिंग वैल्यूज परसेंटेज. ओके, ड्रॉप. बाय द वे फिल्टर कॉलम वगैरह एग्जैक्टली आपको कुछ प्रिंट करना है कौन से कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यूज है तो वो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जो हम df डॉट सेव कर सकते हैं आप, एज इन df डॉट इज एन ए का जो आंसर है डॉट सम, इसका जो आंसर है एक वेरिएबल में सेव कीजिए, वो आप प्रिंट कर सकते हो इंडेक्स वगैरह यूज करके. दिस इज व्हाट इट इज डन. बट ठीक है, इतना दिस इज द गुड एनफ. यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि कौन सा कॉलम है, कितना परसेंटेज है. ओके. ड्रॉप करना है तो डायरेक्टली देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ड्रॉप एन ए. क्या करता है, डायरेक्टली ड्रॉप करता है. एंड इन प्लेस इफ आई चेंज, देखिए सो सेकंड रो इज डिलीटेड. फर्स्ट सेकंड दो इंडेक्स यहाँ से डिलीट हुए हैं. होंडा के बाद टोयोटा आया है. होंडा रिकॉर्ड है, ये डिलीट हुआ है बिकॉज यहाँ पे ब्लैंक है. ये डिलीट हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक है. उसके बाद टोयोटा आया है. ओके. ड्रॉप एन क्या करता है, दिस एंड यही दो रिकॉर्ड है, नीचे के बीच के दो रोज जो है वो डायरेक्टली डिलीट हो गए हैं इसमें से. ड्रॉप एन है, बट दिस इज अ टेम्पररी चेंज. डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं होता क्योंकि आप डेटा डिलीट कर रहे हो. इफ यू चेक df डॉट ड्रॉप एन से डायरेक्टली ड्रॉप होना चाहिए, बट इफ यू प्रिंट df आपको सारा डेटा दिखेगा वापस. हेड 10 करो. हेड ये देखिए 0 1 2 3 ऑलरेडी दिख रहा है. जैसे परमानेंट चेंज करना है तो यू गिव अ पैरामीटर कॉल्ड इन प्लेस. In place is equal to true. The moment you write something like in place is equal to true, the parameter है, you pass the value true. एक आर्ग्यूमेंट पास करो आप ट्रू करके, तो ये चेंजेस इस df में परमानेंटली चेंज होगा. लेट मी एग्जीक्यूट. ये देखिए तो ये अभी परमानेंट चेंज हो गया. अभी इफ आई नाउ चेक द हेड, ये देखिए 036 आ गया. ओके. सो इन प्लेस का मतलब है कि परमानेंट चेंज करना उसमें. तो ये जब आप कोई भी फंक्शन जो मॉडिफाई करता है प्रॉपर्टी सच एज ड्रॉप डुप्लीकेट है, ड्रॉप एन जो हम देख रहे हैं, इन सब में आपको इन प्लेस यूज करना है. इफ यू आर मॉडिफाइंग द ओरिजिनल डेटा फ्रेम तो आपको इन प्लेस यूज करना है. इफ यू आर डूइंग सम चेंजेस टेम्पररीली तो आप टेम्पररी सेव कर सकते हो. और आपको मॉडिफाई नहीं करना है एंड यू वांट टू ओनली हैव मतलब इन प्लेस ट्रू नहीं लिखना है आपको. ओके. आप बैकअप निकाल के रखो फिर इसका, राइट. df का एक बैकअप, राइट. df back is equal to df dot copy. तो आपका एक बैकअप निकलेगा जो डीप कॉपी रहेगा. इवन दो आपने डेटा फ्रेम मॉडिफाई किया तो आपके पास बैकअप रहेगा, राइट. डीप कॉपी. तो ये भी अप्रोच है. और else every time you create some new data frame, for example df without na is equal to df dot drop na. मतलब
df डॉट ड्रॉप na कीजिए और उसका आंसर एक नए वेरिएबल में और नए डेटा फ्रेम में स्टोर कीजिए कॉल्ड df विदाउट na। ये भी अप्रोच ठीक है। ओके, सो इन दैट केस डेटा फ्रेम भी आपका मॉडिफाई नहीं होगा और आपके पास और एक नया डेटा फ्रेम भी क्रिएट होगा जिसमें na वैल्यूज नहीं है। ओके, सो दीज आर द मल्टीपल अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। इधर यू कैन फाइंड आउट अ बैकअप और क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम विदाउट na, और एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम को डायरेक्टली मॉडिफाई करो यूजिंग इन प्लेस इज इक्वल टू। जो इन प्लेस है, सो यू कैन यूज दिस पैरामीटर। ठीक है, df डॉट ड्रॉप na को प्रिंट किया है, वही जो जो ड्रॉप हुआ है 0369। ओके, रिमूव हुए हैं। नहीं तो एक df विदाउट na एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो आप डायरेक्टली, इफ यू वांट टू स्टोर दैट इन द वेरिएबल। एक वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो, सेम नीचे एक्सप्लेन किया है उसी। ओके, और ये इतना मेहनत क्यों लेना है? बिकॉज वंस यू मॉडिफाई द डेटा देर इज नो अल्टरनेट ऑप्शन। आप कंट्रोल जेड वगैरह नहीं है इसमें, अंडू वगैरह नहीं होता। एक बार मॉडिफाई हुआ तो वो परमानेंटली मॉडिफाई होता है। तो इसीलिए मुझे वापस लेके आना है, तो इधर आई नीड टू रीड अगेन वंस अगेन। ओरिजिनल फाइल से रीड करो, फिर आपको पूरा डेटा लेके आना है। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, और एल्स यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपने एक बार डेटा फ्रेम मॉडिफाई कर दिया तो वो चेंजेस परमानेंट है, तो इसलिए डायरेक्टली वापस रीड करना पड़ेगा सब कुछ इफ आई वांट टू शो यू समथिंग एल्स। ओके, ये हो गया नल के बारे में। सपोज नाउ यू वांट टू रिमूव सम डुप्लीकेट के बारे में कुछ आपको करना है, और आपको ये देखिए नीचे के 4 रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट है, तो देर इज फंक्शन कॉल्ड df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, बट दिस टाइम द सेम इन प्लेस ट्रू का लॉजिक यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे df डॉट ड्रॉप लिखो, देखिए ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर सकते हो आप, ड्रॉप na नल वैल्यूज कर सकते हो। लेवल्स अलग है, लेवल्स इज नथिंग बट यू कैन, जहाँ पे हायरार्किकल डेटा होता है, राइट, हायरार्किकल डेटा में से कई ट्री वगैरह रिमूव करना है, ब्रांच रिमूव करना है, तो दैट टाइम यू यूज अ लेवल्स। बट ठीक है, इतने वी डोंट हैंडल एनी, मतलब हम रिलेशनल डेटा डायरेक्टली हैंडल नहीं करते पाइथन में। वी यूज 2 डायमेंशनल डेटा, वी डोंट यूज, मतलब अलग अलग एक्सिस पे हम डेटा स्टोर नहीं करते एक ही लेवल पे। सो नल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, गुड इनफ। डायरेक्टली ड्रॉप भी आप कर सकते हो, सिर्फ ड्रॉप लिख सकते हो, देन इसके अंदर आप अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या है आपका यहाँ पे एक एक्सिस करके है, मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है। वो लेबल्स में लिख सकते हो आप रो का इंडेक्स, नहीं तो कॉलम के नाम, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और डायरेक्टली कॉलम्स, कॉलम्स नाम का एक आर्ग्यूमेंट पैरामीटर है, उसमें कॉलम के नाम पास कर दो आप, राइट। देन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करो। कुछ इरर आता है तो उसे इग्नोर भी कर सकते हो, कॉल्ड इग्नोर इरर और इग्नोर रेज करके आप, ये इरर्स इज इक्वल टू इग्नोर रेज, ये ऐसा आपने पैरामीटर दिया तो इट विल नॉट शो यू एनी इरर्स ऐसे। ओके, so this multiple options are also available। आप एक्सेस डिसाइड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्सेस का ये है, एक्सेस इज इक्वल टू रोज दे दो, नहीं तो 0 एंड 1 में भी आप पास कर सकते हो। 0 एंड 1, 0 इज द रोज एंड 1 इज द कॉलम। आप नहीं मैन्युअली आप रोज लिख सकते हो, नहीं तो कॉलम्स भी लिख सकते हो इफ यू वांट। एंड देन कॉलम एक्चुअल भी पास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कॉलम ड्रॉप किया है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ड्रॉप na किया एंड एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम किया, तो ये इस पूरे कॉलम में कहीं पे भी नल वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो ये डिलीट हो जाएगा, पूरे कॉलम में यहाँ पे नल वैल्यू और कहीं पे भी नल वैल्यू रहेगा तो ये डिलीट होगा। तो ऐसा करके पूरा डिलीट भी हो सकता है इफ यू डू ड्रॉप na एंड एक्सेस इज इक्वल टू सिर्फ कॉलम किया। तो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, ये देखिए ड्रॉप na सारे कॉलम्स डिलीट हो गए, क्योंकि
सारे कॉलम्स में आपके पास नल वैल्यूज थे। ओके, रोज किया आपने तो जहां जहां पे भी आपके रोज लेवल पे, फॉर एग्जांपल दिस रो, इस रो में ब्लैंक है तो ये रो डिलीट होगा ऐसे। इस रो में है क्या ब्लैंक? नहीं है, बट इट विल बी अवेलेबल लाइक दिस। तो ये देखिए, सो होंडा टोयोटा 0369, यहाँ पे कहीं पे भी ब्लैंक नहीं है तो इसलिए इट हैज सिलेक्टेड दिस ऑप्शन। मतलब ये ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे एक्सेस से आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर कॉलम लेवल ऑपरेशन होगा कि रो लेवल ऑपरेशन होगा, ऐसे। ओके, सो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। कैसे आपको यूज करना है, वेदर यू वांट टू, जनरली रो लेवल पे ही आप नल वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, यू डोंट रिलाई। कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम लेवल आप डिलीट कर सकते हो, बट इट विल रिजल्ट इन डिलीटिंग एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो सकता है। ओके, इससे अच्छा ड्रॉप एनए की बजाय डायरेक्टली कॉलम रिमूव करना है तो आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो एंड एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स दे सकते हो, बट ओनली थिंग इज कॉलम के नाम भी पास करो आप। ओके, कॉलम के नाम भी पास कर सकते हो, कॉलम्स एंड नेम डोर्स। ओके, तो ये देखिए, तो मेरे डेटा में से डोर्स चला गया, बिकॉज एक्सेस इज कॉलम, क्या ड्रॉप करना है? डोर्स। आपको डायरेक्टली कुछ डिलीट करना है तो यू कैन यूज दिस अप्रोच। ओके, और इसे परमानेंट करना है तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये परमानेंट हो जाएंगे चेंजेस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉप एंड ड्रॉप एनए, नल वैल्यूज ड्रॉप करना है तो। सेम लॉजिक डुप्लीकेट के बारे में भी है, df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट। ओके, रोज डुप्लीकेट, कॉलम डुप्लीकेट, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और लेट मी चेक, नीचे दिया गया होगा उसके अलग अलग एग्जांपल है। लेट मी रीलोड अगेन, ड्रॉप एनए है सम। ओके, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, डेटा फ्रेम वापस प्रिंट किया है, डुप्लीकेट, हाँ, df डॉट डुप्लीकेटेड से आप चेक कर रहे हो, एंड काउंट चाहिए तो डॉट सम करते हैं, डुप्लीकेटेड डॉट सम, राइट। एंड ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डुप्लीकेट, फॉर एग्जांपल df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, रन। सो पूरे डुप्लीकेट डिलीट हो गए। देखिए 998 रिकॉर्ड्स, एक्चुअल डेटा फ्रेम में कितने थे? 1001 रिकॉर्ड्स थे। डायरेक्टली ये df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट सब कर सकते हो ऐसे, बट अगेन चेंजेस परमानेंट नहीं है तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा टू मेक द चेंजेस परमानेंट। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट, एंड इस बार अभी देखिए यहाँ पे 1001 दिख रहा है। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखिए 998, नीचे के जो डुप्लीकेट्स थे वो निकल गए बिकॉज आई डिड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स है। फॉर एग्जांपल देखिए एक पैरामीटर है कीप करके, ये क्या डिसाइड करता है फर्स्ट रखना है कि लास्ट रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डुप्लीकेट है, फर्स्ट रखना है मतलब ये रिकॉर्ड रखेंगे एंड नीचे के 3 डिलीट होंगे। कीप इज इक्वल टू फर्स्ट, कीप इज इक्वल टू लास्ट किया तो कीप इज इक्वल टू लास्ट करोगे मतलब ये रिकॉर्ड रखना है और इसके 3 ऊपर जो डुप्लीकेट थे, मतलब लास्ट रिकॉर्ड रहेगा उसके ऊपर के सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे ऐसे। ओके, like this you can set the parameter, for example keep first and last। अरे फर्स्ट सेट कर सकते हो एंड लास्ट, आई गेस फर्स्ट लास्ट क्या हमने सेट किया था? ओ, होप यू अंडरस्टूड, एफ कैपिटल था, एफ स्मॉल चाहिए था। फर्स्ट एंड देन लास्ट आप ऐसा डायरेक्टली सेट कर सकते हो। इफ यू वांट ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से आप चेक देखना पड़ेगा आपको।
टू अंडरस्टैंड। पहले मैं लोड कर लेता हूँ डेटा पहले वापस, क्योंकि हमने डेटा फ्रेम मॉडिफाई किया, राइट? कहाँ है? सॉरी, लेट मी लोड हियर ओनली। कीप लास्ट वगैरह यहाँ पे हम देख रहे हैं। लेट मी लोड द डेटा। डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट रीड। कौन सा है? कार्स, कार्स का ही था ना? ओके, रीड हो गया एंड देन df डॉट टेल। ओके, ये देखिए, ये चारों रिकॉर्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, एंड df डॉट डुप्लीकेटेड चाहिए था ना हमें। डुप्लीकेटेड आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया है? दिस रिकॉर्ड इज, ये 3 ट्रू आ रहा है, 998 फॉल्स है। 998 फॉल्स क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कीप इज इक्वल टू फर्स्ट होता है। इफ आई मेक कीप इज इक्वल टू लास्ट, ये देखें, तो लास्ट रिकॉर्ड फॉल्स आएगा, मतलब नॉट डुप्लीकेट, और ऊपर के 3 डुप्लीकेट, क्योंकि ट्रू आया है, राइट? सो दिस इज अ डिफरेंस। और आपको ड्रॉप करना है तो लिखो ड्रॉप डुप्लीकेट, ड्रॉप डुप्लीकेट, ड्रॉप डुप्लीकेट से, ये देखिए। सो 997 के बाद 110 ही रखेगा, बीच के 3 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इफ आई मेक फर्स्ट, ये देखिए 997 के बाद 998 रखेगा, नीचे के जितने भी रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर? फिर अगेन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना है तो आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? देन सबसेट करके भी एक पैरामीटर है, सबसेट। ये क्या कर सकता है? किस में डुप्लीकेट है वो चेक करता है। ओके, सपोज मुझे सिर्फ डुप्लीकेट 2 ही कॉलम में चाहिए और 3 कॉलम में चेक करना है। फॉर एग्जांपल ब्रांड एंड स्टाइल, तो यहाँ पे ब्रांड एंड स्टाइल एज अ सबसेट पास करना पड़ेगा। देखिए, सबसेट इज अ ब्रांड, सिर्फ ब्रांड में डुप्लीकेट है कि नहीं चेक करेगा। ऐसे आपको ब्रांड एंड स्टाइल में चेक करना है तो ब्रांड एंड स्टाइल। हमारे केस में क्या आएगा? सपोज आपको सिर्फ चेक करना है मेक एंड कलर में डुप्लीकेट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल BMW एंड ब्लू, ये कॉम्बिनेशन नीचे है कि नहीं, इतना ही चेक करना है। तो यू कैन चेक सबसेट इज इक्वल टू, आप डिफाइन कर सकते हो, यू कैन पास दोज कॉलम्स कॉल्ड मेक कॉमा कलर। ओके, कलर ऑब्जेक्ट टाइप, कलर, जस्ट अ सेकेंड। कलर, हमने कुछ डेटा मॉडिफाई किया था क्या कलर के लिए? नो, राइट? सो इंडेक्स कलर, कलर है कि नहीं है? लेट्स गो वन बाय वन। कलर तो है। सो या नॉट श्योर आप व्हाई इट इज वर्किंग, बट ओके। सो दिस इज, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। मेक एंड कलर 2 ही कॉलम आपको यूज करना है टू चेकिंग द डुप्लीकेट्स। ऐसा कई रिक्वायरमेंट है। पहले क्या होता था? बाय डिफॉल्ट इट यूज टू चेक एवरीथिंग, पूरे 5 कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स मैच होंगे तो ही डुप्लीकेट असाइन करता था। बट आपको सिर्फ मेक एंड कलर के डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं, तो आप सबसेट नाम का एक पैरामीटर यूज कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे आप डिलीट कर सकते हो और यू कैन डिसाइड। फॉर एग्जांपल मेक एंड डोर्स का चाहिए तो मेक एंड डोर्स एज अ सबसेट आप पास कर सकते हो। ओके,
एंड इफ यू वांट टू रेफर अ डॉक्यूमेंटेशन, बाय द वे डॉक्यूमेंटेशन सब जगह पे रेफर होता है, शिफ्ट एंड टैब, ओके। सो डायरेक्टली आप रेफर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ये याद ही रहना चाहिए, रट्टा ही मारना है क्या क्या सबसेट है क्या नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ओके। वैसे रीड CSV के देर आर मोर देन 20 पैरामीटर्स। ये देखिए रीड CSV के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप क्या क्या याद रखोगे इसमें से, ये देखिए मोर देन 20। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, पता होना चाहिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको। और इतना मेहनत हमने, इफ हम क्यों पढ़ रहे हैं इतने डिटेल में, पहले पाइथन सीखा फिर उसके बाद नमपाई सीखा, क्योंकि यहाँ पे देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ पे डॉट रीड करके ये पैरेंथेसिस लिखा है, सो दिस इज अ मेथड, इन द मेथड वी पास सम पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में हेडर लिखा है उसे इंटीजर पास करते हैं हम, राइट। नेम्स की जगह सीक्वेंस और नन जाता है, देन कॉलम इंडेक्स में इंडेक्स जाता है और यूज कॉलम में लिस्ट जाएगा, कुछ भी हैश टेबल है, ये एडवांस डेटा टाइप है बट ठीक है, लिस्ट आप समझ सकते हो। यहाँ पे डेटा टाइप इज इक्वल टू नन लिखा है, मतलब ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। इंजन ऑल्सो इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर, देखिए इज इक्वल टू नन इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर है इसका, राइट। यहाँ पे इंटीजर आप पास कर सकते हो, यहाँ पे इंटीजर जाएगा नहीं तो नन जाएगा, बाय डिफॉल्ट नन पास किया है ऐसे। तो ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, बुल यहाँ पे बुलियन पास करना है, that's why we learned all the Python basic and everything, okay, so that you can use your basic understanding to solve all the problem। str you know string, okay। यहाँ पे देखिए कोटिंग करके कुछ है, उसका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है 0, नहीं तो इंटीजर जाता है। डबल कोट का डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जाता है बुलियन एंड ट्रू रहता है डबल कोट बाय डिफॉल्ट। क्लियर हाउ यू कैन मैनिपुलेट द डेटा। इसमें और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अभी तो हमने सिर्फ डिलीट का देखा है, कल हम रिप्लेस के बारे में देखेंगे, हाउ यू कैन रिप्लेस द नल वैल्यूज। आज हमने देखा कि नल वैल्यूज कैसे ड्रॉप करना है, ड्रॉप एन ए, ड्रॉप डुप्लीकेट, राइट। कौन से लेवल पे डुप्लीकेट करना है, लेवल एज इन परसेंटेज फाइंड आउट करके उसे कैसे आप एड्रेस कर सकते हो, इफ इट इज लेस देन 5 डायरेक्टली यू कैन डिलीट। देर आर मल्टीपल अप्रोच, इसके और 2-3 अप्रोच है। वन इज फिल द डेटा, आप फिल कर सकते हो। फिल किसके साथ करोगे, कांस्टेंट के साथ कर सकते हो, नहीं तो मीन के साथ, मीडियन के साथ। सो अलग अलग अप्रोच, ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो टू हैंडल द नल वैल्यूज, ओके। डुप्लीकेट तो डेफिनेटली यू नीड टू डिलीट ओनली, डुप्लीकेट आप कुछ डेटा के साथ फिल नहीं कर सकते, बट या दिस इज द पॉसिबल ऑप्शन। एंड डेट, डेट डेटा टाइप यू कैन यूज डॉट टू अंडरस्कोर डेट इंडेक्स, ठीक है, आपको याद रखना है तो, और एल्स डेफिनेटली यू कैन यूज अ शॉर्टकट, ये देखिए df डॉट टू लिखिए अंडरस्कोर एंड रन, टू डेट टाइम रहेगा, नहीं तो डेट आता है क्या नहीं, मे बी आई शुड चूज सम डेट। पहले तो एक कोई भी डेट कॉलम उठा लो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे डेट कॉलम है आपके पास, उसके ऊपर आप टू डेट लगा दो, मे बी दैट वुड गिव ऑप्शन, सजेशन देगा आपको टू डेट ऑप्शन के बारे में, ओके। टाइम स्टैम्प है, टू स्ट्रिंग वगैरह करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्जन, ओके। दिस इज हाउ यू कैन यूज, और आप याद रखना है ऐसे तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड टू डेट टाइम और डेट टाइम इंडेक्स वगैरह, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन, एंड होप इतना, लाइक ओनली वी आर लर्निंग न्यू मेथड्स, इसमें कुछ अलग नया नहीं सीख रहे, देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉजिक कि कुछ आपको मतलब लूप वगैरह सीख रहे हैं और कुछ फंक्शन कैसे वर्क होता है, क्या वर्क होता है, all those things we have covered in detail। python में almost 25-26 lectures सिर्फ python basics हमने सीखा है, just to come to this point, right, so that directly हम जब method use करेंगे उसके underlying जो logic है वो हमें पता चले directly, इसीलिए, okay।
Good. Okay then. So if you have any questions, doubt or clarification, let's connect. Okay. If not, then please run the code again. I will send this file. मैं फाइल भेज देता हूँ आपको, आप पूरा कोड चेक कीजिए. नहीं तो आपके पास कोई डेट टाइम रिलेटेड डेटा है तो उस पे ये लॉजिक अप्लाई कीजिए, टू डेट टाइम इंडेक्स वाला. ओके, सो दैट यू विल गेट मोर क्लैरिटी. आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा. ओके, चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ओके, डेफिनेटली कनेक्ट next time.